अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है और हम काउंटडाउन को पढ़ रहे हैं, ग्रेड 4 की काउंटडाउन। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 को समझने से पहले हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये कि हमें नंबर्स को पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था, हाउ टू रीड अ नंबर, हाउ मैनी वेज आर देयर टू राइट अ नंबर और टू रीड अ नंबर। बट यहाँ हमें अगर दो नंबर्स, थ्री नंबर्स और मोर देन these numbers are given to us, then how we compare them? If we have to ask which one is greater, then how we can find that which one is the greater one? इसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो हम रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स फॉर कंपेयरिंग नंबर्स। पहला रूल है, द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। Mean if number has more digits, it is the greater one. For example, 9-digit number is greater than 8-digit number, and 8-digit number is greater than 4-digit number. Let's take an example to understand this rule. Two numbers are shown in front on the screen here. In these two numbers, we have to think which one is the greater one. So we will apply rule 1, and that says count the digits. The more digits you have, the more value the number has. So let's count the digit of the leftmost number, that is 157,863,117. Let's count the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It has 8 digits. Now see the rightmost digit, the rightmost number, and that is 157,863,117. So count the digits of this number as well. It has 9 digits. So as the rule says to us, 9-digit number is greater than the 8-digit number. So we will apply greater sign. And see, remember when you were in class 1, 2, 3, remember that we have shown you the face of a mouth of a crocodile, and we to have told you that crocodile always eats bigger number. So here the bigger one is 157,863,117. So crocodile mouth moves towards the bigger number. So that's why its mouth is moved towards the bigger number, because it has more digits. Now rule number 2. Rule number 2 says if two numbers have the same number of digits, we compare them on the basis of their extreme left digits. The number with the greater extreme left digits is greater. अच्छा, हेयर व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हमें नंबर अगर हमने काउंट कर लिए हैं और दोनों डिजिट्स सपोज 8 डिजिट्स नंबर है या सपोज दोनों 5 डिजिट्स नंबर है, देन हाउ वी विल कंपेयर देम। तब हमें एक और रूल समझना पड़ता है, वो ये कि हम उस नंबर को लेफ्ट मोस्ट साइड से देखते हैं कि विच वन इज़ द बिगर वन। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। 57,863,119 and 57,863,019. अच्छा, in this number, see, count the digits first. Both of the numbers have 8 digits, so they are the 8 digits number. We cannot compare them by following rule 1. So rule 1 is finished here. We will move towards rule 2 and we will start comparing them from the leftmost side. Leftmost side is 57, 57. Same. 863, 863. Same. Move to the next house. First we have checked the million house, then we have checked the thousands house. Now we are checking ones house. In ones house we have 119, and in the second number we have only 19. So what do you think? 119 is bigger or 19 is bigger? 119 is bigger. So crocodile mouth moves towards the bigger number. So it wants to eat the bigger number. So that's why we are clear here that 57,863,119, and crocodile is going to eat this number. So let's sum it up. If the extreme left digits of two numbers are the same, we compare them by moving the next digit towards their right, and so on. Now we are going to do question number 11 of countdown and question number 13 of countdown. Question number 11 says fill in the blanks with greater than, less than or equal to sign. So as we have understood the concept. अच्छा जी, तो हम आते हैं पेज नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बता रहा है, बल्कि हमसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। तो हम क्या करेंगे, वी विल फॉलो द सेम रूल्स फॉर कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर्स गिवन है तो हम पहले काउंट करते हैं। पहला रूल क्या कहता है, काउंट द डिजिट्स, इफ़ दे आर सेम देन वी विल स्टार्ट चेकिंग विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 2। तो हम काउंट करते हैं, दोनों के 7 हैं डिजिट्स, तो बोथ आर 7 डिजिट नंबर ऑफ ए पार्ट। 6,984,529, 6,894,529, दोनों 8 डिजिट्स हैं। हम फिर चेक करना शुरू करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, चेक फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। सो लेफ्ट मोस्ट इज 6 इन द मिलियंस हाउस, बोथ हैव 6 इन द मिलियंस हाउस। हम आते हैं थाउजेंड्स हाउस की तरफ। थाउजेंड हाउस में लेफ्ट साइड पे है 984 और राइट पे है 894। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 984। तो बस हम अपना नंबर चेक करना यहाँ से स्टॉप कर देंगे। 184 ग्रेटर है तो होल नंबर इज ग्रेटर। सो क्रोकोडाइल माउथ मूव्स टूवर्ड्स द बिगर नंबर। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है 45,800,100 और फिर 45,810,100। अगेन रूल 1 says count the digits. So both have 8 digits number, both have 8 digits in both of the numbers. हम क्या करना शुरू करेंगे, we will start checking from the leftmost side. So leftmost in the millions house is 45, both have 45. thousands house में लेफ्ट डिजिट जो लेफ्ट नंबर है उसमें है 800 इन thousands हाउस, और जो राइट नंबर है उसमें 810। तो विच वन इज़ बिगर, 800 और 810? जी बिल्कुल 810। तो हम अपना चेक करना, यहाँ कंपेयर करना यहाँ से स्टॉप कर देंगे और हम समझ जाएंगे कि 810 इज़ बिगर, सो द होल नंबर इज़ बिगर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड सी पार्ट। सी पार्ट है 359,412,025, फिर है 359,412,125। जी हम चेक करते हैं, काउंट द डिजिट्स बोथ ऑफ द नंबर्स, बोथ हैव 9 डिजिट्स नंबर। तो 9 डिजिट नंबर हैं दोनों। तो अब हम चेक करेंगे लेफ्ट मोस्ट साइड से। इन मिलियंस हाउस वी हैव 359 इन दिस साइड एंड 359 ऑन द राइट साइड। अब हम आते हैं सेकेंड थाउजेंड्स हाउस की तरफ। 412 फिर 412। हमने क्या रूल 2 में पढ़ा था कि स्टार्ट चेकिंग और स्टार्ट कंपेयरिंग द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड। तो लेफ्ट मोस्ट 359 सेम, 412 412 बोथ आर सेम। इन वंस हाउस लेफ्ट साइड पे है ओनली 25 और राइट साइड पे है 125। तो विच वन इज़ बिगर, जी बिल्कुल 125। सो क्रोकोडाइल माउथ मूव्स टुवर्ड्स द बिगर नंबर। अब हम जाते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में है 6,800,152, दूसरे में भी 6,800,152। जी दोनों के सेम डिजिट्स हैं, काउंट किए हमने, बोथ हैव सेम डिजिट्स, 7 डिजिट नंबर। स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड। 6 both have 6 in the millions house, both have 100 in the thousands house, both have 152 in one's house। तो फिर क्या हुआ नंबर, ग्रेटर, लेस और इक्वल? जी बिल्कुल बोथ आर इक्वल। अब हम आते हैं ई पार्ट की तरफ। 100,985,263, दूसरा है 99,985,265। तो काउंट करते हैं। रूल 1 कहता है काउंट द डिजिट्स। सो व्हेन वी count the digits, then we come to know that the leftmost number has more digits. It has 9 digits and the right number has 8 digits. So 9 digit number is greater. We need not to check or follow the rule number 2 because rule number 1 में ही हमें नंबर मिल गया है। So question number 11 is completed. अब हम आते हैं question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या। तो इसके लिए सामने आपको एक पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पे, जिसमें फ्लावर है और उसके डिफरेंट स्टेप्स में फ्लावर की ग्रोथ दिखाई गई है ना। लेफ्ट मोस्ट साइड पे छोटा सा एक बड है, फिर वो फ्लावर छोटे से थोड़ा सा उसका वो ग्रो करता है। फिर ग्रोइंग स्टेज में पहला स्टेज 1 है, फिर 2 है, फिर स्मॉल था, स्मॉलेस्ट फॉर्म में था, फिर स्मॉल में गया, फिर बिग में गया, फिर बिगर में गया, फिर बिगेस्ट में गया। तो ये क्या आपको शो हो रहा है ना, स्मॉल,
फिर बिगर, फिर बिगेस्ट। अच्छा, फिर इस नेक्स्ट शेप में देखिए जी, एक आपको नज़र आ रहा होगा एक स्टेप्स हैं जिनमें लोअर स्टेप से आपकी तरफ जा रहे हैं ना, ये बंदा नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा जी, अब ये आपको कॉइन्स की एक नज़र आ रही है, एक पैटर्न। इसमें पहले वाली आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 कॉइन्स हैं, फिर आगे ज़्यादा कॉइन है, तो उन्होंने एक ऑर्डर में रखा है। द लेस कॉइन्स आर एट द लेफ़्ट साइड एंड द मोर कॉइन्स वी हैव आर एट द राइट साइड, राइट मोर साइड। तो इसमें कुछ नज़र आ रहा है आपको कि ये कैसे इन्होंने तरतीब दी हुई, कैसे पैटर्न बनाया? जी बिल्कुल, इन्होंने ऐसे तरतीब दी है कि स्मॉल सबसे पहले लिखा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। इससे आपको समझ आ रहा है कि हम कुछ करते रहे हैं, क्लास 3 में भी करते रहे हैं, कि कौन सा ऑर्डर समझ आ रहा है आपको? जी गुलाम मुस्तफ़ा, आप बताएं। असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर। क्या मतलब है इसका? स्मॉलर टू बिगर। हाँ जी, फर्स्ट वी विल राइट, वेरी वेल देन गुलाम मुस्तफ़ा, फर्स्ट वी विल राइट स्मॉलर नंबर, smallest one, then the bigger, bigger, biggest and so on until we reach till the biggest one number. तो हम पढ़ने लगे हैं ascending order. अच्छा, जैसे कि ये आपको सामने एक ग्राफ में भी शो किया गया, मतलब आपको समझ आ रहा है ये ग्राफ क्या बता रहा है, कौन सा ऑर्डर बता रहा है? असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, ये मैं बता रहा है ascending order, है ना। और ascending order means smaller to bigger. तो हम पहले समझते हैं ascending order होता क्या है। Numbers are said to be in ascending order when they are arranged from the smallest to the largest number. Largest mean the biggest one, ठीक है, both are same. So greatest number लिखेंगे सबसे आखिर में, और सबसे जो छोटा है वो सबसे पहले लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक पैटर्न शो हो रहा है, 5, 9, 13, 17 एंड 21 आर अरेंज्ड इन ascending order. अगर हम वैसे लिख लेते हैं 5, 13, 21, 17, 9, तो फिर वो ऑर्डर नहीं है कोई भी, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, बस नंबर्स लिखे हुए। लेकिन जब हम इनको ऑर्डर में लिखते हैं, स्मॉलेस्ट सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये बन जाता है असेंडिंग ऑर्डर। तो हम करने लगे हैं असेंडिंग ऑर्डर। और क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 1A, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट में गिवन है, ये देखिए हमने नोटबुक पे ए पार्ट का लिखा है। पहला है 45,298,653, फिर सेमी कॉलन बताता है कि दिस इज द नेक्स्ट नंबर, ये आपका नंबर यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट नंबर है 45,288,653, फिर हमने सेमी कॉलन लगाया, इसका मतलब है नंबर ख़त्म हो गया। और अब आगे एक और नंबर लिखा है हमने, ये शो हो रहा है 45 और कॉमा 3। आपको लग रहा है कि ये नंबर सही लिखा है हमने? गुलाम मुस्तफा, क्या लग रहा है आपको, ये सही लिखा है, हमें ऐसा लिखना चाहिए? नहीं। हाँ जी बिल्कुल, हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। गुलाम मुस्तफा ये तो जानते हैं कि नहीं, बट यू नो वाई वी नीड नॉट टू राइट इट इन दिस वे, because as I have told you earlier that on the notebook we cannot write half number here and half number on the next line. First we see how many boxes left we have. We have here after this second number we have 1 2 3 4 boxes, है ना, but the number that we are going to write has how many digits? 8 digits. So how can we put these 8 digits in 4 boxes? So the better way is, this is the wrong way to write a number, the better way is we write the number on the next line. Okay, so next number is 45,308,653. बस ये 3 नंबर्स गिवन है और हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का वही रूल है कि हम चेक करेंगे सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसके लिए हमें रूल ऑफ कंपेयरिंग नंबर्स करना पड़ेगा। रूल ऑफ कंपेयरिंग नंबर्स क्या है, कोई बताएगा मुझे? जी मुझे बताएंगे शहीर। जी शहीर, आप बताएं। मैम इसमें हम रूल 1 फॉलो करेंगे, काउंट डाउन द डिजिट्स। जी बिल्कुल, हम काउंट डाउन द डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स। हम पहले नंबर के डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी 8 डिजिट्स हैं, इसके भी 8 डिजिट्स हैं, तो रूल 1 तो अप्लाई हो गया इस पर। अब ये रूल 1 के मुताबिक तो ये सारे सेम हैं, दे ऑल आर 8 डिजिट्स नंबर। अब हम 8 डिजिट नंबर्स, अब हम जाएंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है कि स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड।
तो इस हाउस के पहले नंबर के 45 मिलियन हाउस में है, सेकंड नंबर में 45 मिलियन हाउस में है, थर्ड नंबर का भी 45 मिलियन हाउस में है। तो मिलियन हाउस के सेम है या नहीं? सेम है ना? तो सेम है। अब हम आते हैं 1000 हाउस की तरफ। 1000 हाउस में पहले नंबर पे है 298, दूसरे पे है 288 और थ्री से थर्ड में है 308। तो कौन सा सबसे छोटा होगा? 298, 288 और 308? आप बताएं। जी बिल्कुल 288। 288 छोटा है, तो इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे कंपेयरिंग और कंपैरिजन, और हम इसको टिक कर देंगे और हम इसको लिख देंगे यहाँ अपने पास। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल हमने स्मॉलेस्ट वन हमने लिख लिया। अब हम नंबर 1 लिख लिया, तो हम सेमीकॉलन लगाएंगे और हमने एक नंबर लिख लिया है और अपनी आसानी के लिए हम उसे टिक कर देंगे कि दिस इज़ डन नाउ। अब हम आते हैं स्टार्ट कंपेयरिंग द लेफ्ट ओवर नंबर। अब जो एक है 45 मिलियन, हमने चेक कर लिया दोनों सेम है। अगले में है 1000 हाउस में 298 और इसमें है 308। तो कौन सा छोटा होगा? 298 और 308? 298। वेरी गुड, 298। तो हम इसको 298 लिखेंगे, लेकिन पहले हमें लगाना है सेमीकॉलन और फिर हम जो लास्ट में रह गया है 45,308,653 को लास्ट में लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का बी और ए बी पार्ट तो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सी एंड डी पार्ट। ए पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे बी पार्ट। तो बी, इसके ए और बी दो ही पार्ट्स हैं बेटे, तो हम वो बी करेंगे। बी पार्ट में हमने नंबर्स लिख लिए हैं 7,11,262, 70,111,162 और थर्ड नंबर लिखे सेमीकॉलन के बाद। अब आगे नेक्स्ट नंबर लिखा जा रहा है 7,02,162। पहले हम वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग देंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग के रूल नंबर 1 कहता है काउंट द डिजिट्स। हमने डिजिट्स काउंट किए हैं, तो 7,11,262 के 7 डिजिट्स हैं, 70,111,162 के 8 डिजिट्स हैं। इसको तो हम लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। अब 7 डिजिट्स दो नंबर है जो 7 डिजिट्स हैं, वो है 7 फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है द स्टार्ट चेकिंग और स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स। लेफ्ट मोस्ट में मिलियन हाउस में दोनों में 7 है, बोथ आर सेम इन मिलियंस हाउस। हम चेक करते हैं 1000 हाउस में। 1000 हाउस में ये वन जो है दिस इज़ 11 फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड इज़ 2, so 11 is bigger or 2 is bigger? 11 is bigger and we have to write the smallest one, so 2 is the smallest one. We will write 7,02,162 और फिर हम सेमीकॉलन लगाएंगे और साथ में टिक भी कर देंगे इस नंबर को, क्योंकि हमने ये नंबर लिख लिया है ताकि दोबारा ना लिखे ना। आपको पता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप एक भी रॉन्ग लिखते हैं आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हम जाते हैं कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकेंड नंबर को। आपको पता है सेकेंड नंबर हैज़ 8 डिजिट्स एंड फर्स्ट नंबर है 7 डिजिट्स, तो 7 डिजिट इज स्मॉलर देन द 8 डिजिट नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर को यहाँ लिख देंगे एंड द लास्ट वन इज़ द 70,111,162। क्वेश्चन नंबर 13 के ए और बी पार्ट्स दोनों हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।